Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Today we are going to continue the same chapter, Nationalism in Europe. Yes, Kashish, you raised hand but I want to say something. मैम जो हमने कल क्वेश्चन किया था वो हमने बुक पे मार्क करना है ना, सिर्फ नोटबुक पे तो नहीं करना। नहीं करना था, नोटबुक पे मैंने करवाया है। मैम मुझे लगा आपने सिर्फ बोला मार्क करने के लिए। अरे नहीं, मैंने बोला यहाँ पे क्लास में भी ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेस डेट एंड स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन, दिस हेडिंग देन एक्सप्लेनेशन, दिस हेडिंग देन एक्सप्लेनेशन। ओके, वो क्वेश्चन लिखना है। हाँ जी, अनुज, सार्थक, शबनम, बेटा कैमरा ऑन। शबनम, व्हाई यू वर एब्सेंट इन द क्लास यस्टरडे? कल मैं रजिस्टर पे अटेंडेंस लगाने लगी तो शबनम को एब्सेंट मार्क करा। क्लास में क्यों नहीं थे शबनम कल? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम कल मैं आई चेकअप करवाने गई थी तो उसके कारण मैंने क्लास मत मिस किया करो क्योंकि ये देखो आपकी अटेंडेंस लगती है। ये देखो सी, आपको पता होना चाहिए। देखो कल मेरी क्लास में इतने बच्चे एब्सेंट थे, देख रहे हो आप, ऐसे पीपी करके अटेंडेंस लगती है आपकी। तो इन लास्ट यू विल नॉट से लाइक दिस के मैम we have attended class or we have not attended class because we are having all records. ठीक है, चलो। Yes, open your book. First we will start reading. I'll explain you everything and then you will write the question. We will see, we will write the question or we will directly learn from book. And the liberal nationalism we have done yesterday and today we are going to do conservative. No, last paragraph. I think we have to do last paragraph. Chanpreet, unmute yourself. Such condition से पढ़ना ना? Chanpreet, unmute. Yes, हाँ, ठीक है. Yes, Shabnam, want to say something, beta? मैम on which page number? Beta, page number 10, second paragraph, such condition. Yes, Purshad. Can you tell where can I get the recording of last class? हाँ, Because it wasn't बेटा Facebook पर नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, मैंने दूसरी क्लास की डाल दी ना, आज वो भी डाल दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। इस क्लास की रिकॉर्डिंग सही डाली थी कल, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है? चलो, हाँ जी, shall we start? Rahul Dadwal, Sarthak. Yesterday I removed 2 students from the class because they have switched off their cameras, and then their parents were calling me, ma'am, you have removed our son. So cameras must be on. मेरा on है ना कैमरा? हाँ पुरुषार्थ बेटा, yes. मैं start करूं? हाँ करो शुरू बेटा, पुरुषार्थ। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the neo-commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people, and capital. In 1834, the Customs Union, or Zollverein, was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The Union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interests to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. Chalo, now thank you very much, Anpreet. See, before this paragraph means recapitulation. Yesterday we have done about the economic sphere, liberalization in economic sphere means economic liberty क्या है. So you have done that, number of type of currencies were there, measurement was there, and example you have also done, है ना? तो मैंने कहा था high achievers will definitely learn that, and if other people can learn it, well and good, because the name of the areas are little different, and the measurement of these the same thing was different from one place to another place. So चक्कर यही था कि सबसे ज्यादा जो थे वो कस्टम ड्यूटीज थे और बैरियर्स लगे थे, एंड it was time consuming and having lot of calculation.
So all the things were not in favor of the businessmen people. So इसको solve करने के लिए क्या किया? सबसे पहले they have started the making groups. So what these groups will do? These groups were known as Zollverein. This is a new word for you. इसके spelling भी देख लेना, Zollverein. Zollverein करके ग्रुप बने थे. These were custom union or trade groups. इनका काम था ट्रेड फ्री करवाना. And they reduced currency from 30 to 2. 30 तरह की करेंसी हुआ करती थी, वो सारी कम करके सिर्फ 2 तरह की रह गई थी. और इनका मेन काम था ट्रेड ग्रुप्स के ऊपर से सारे के सारे बैरियर्स हटा देना. Now I am going to read and please listen. Such conditions were viewed as obstacles in economic change and growth by the new commercial class. आगे आने वाले लोग जो थे, मेहनत करने वाले लोग जो थे, they were very much strict with these kinds of things. और उनके लिए ऐसे वाला ट्रेड करना was very difficult, which was time consuming. Who argued for creation of unified economy. वो तो कहते थे एक ही तरह की इकोनॉमी होनी चाहिए, ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए जिसके चलते हम फ्री ट्रेड कर सकें आराम से और बेनिफिट प्रॉफिट हमें मिल सके. So in 1834, a custom union, Zollverein, was formed, initiated by Prussia. अपने दिमाग में एक बात याद रखना, प्रशिया was a powerful country और इसके साथ जर्मनी भी जुड़ गया. तो प्रशिया ने सबसे पहले ये वाला इनिशिएटिव लिया कि एक ट्रेड यूनियन बनेगी, उसमें सारे ट्रेडर्स उसके अकॉर्डिंग फ्री ट्रेड करेंगे और खूब सारा प्रॉफिट होगा. फिर इन्होंने करेंसी भी कम कर दी, बस 2 ही तरह की करेंसी होगी, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा, ट्रेड करना भी इजी हो जाएगा, मेजरमेंट भी इजी हो जाएगा, ना तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा ना वो कॉम्प्लिकेटेड होगा. Then the union abolished tariff barrier. सारे के सारे बैरियर इन्होंने हटा दिए and reduced currency from 30 to 2. The creation of network railway further stimulated. रेलवे नेटवर्क बहुत बढ़िया कर दिया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गए. A wave of economic nationalism strengthened the wider national sentiments growing at the time. इस तरह नेशनल सेंटिमेंट और ज्यादा बढ़. One question only and directly you will learn from book. We will not write and copy. Now start writing here question. इसी पैराग्राफ के ऊपर जहाँ चैनप्रीत ने पढ़ना शुरू किया ना, इसी पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन लिखो. सी यहाँ पर क्वेश्चन लिखो. What was Zollverein on book? What was Zollverein? Ahan, Krish, Shabnam. Camera on. हाँ उर्वीश बेटा. Urvish, you raised hand. Actually, I wanted to the question should be repeated. This one. I wanted that the question should be repeated, but you have repeated. This is my habit. I already repeated. What was Zollverein? Explain its role. What was Zollverein? Explain its role. Chalo, with this question we will not write in copy. Vaibhav, camera on. हाँ जी, पुरुषार्थ. Start reading बेटा. Next, a new conservative regime. अब ये वही जो अभिषेक ने बैकग्राउंड लगाया. Conservative means all the people, this we have discussed na, that all the people are covering their mouth, they will not speak anything, but still the meeting is going on. These conservative people believe in the rule of king and queen and they never want any kind of quick change in the society. Am I right? Show me thumbs up if this is clear to you. Conservative clear है तो ही आगे पढ़ेंगे. चलो ठीक है. Thank you बेटा. Thank you. चलो पुरुषार्थ. Start reading बेटा. Conservative regime. A new conservatism after 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven a spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society, like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family, should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon
that modernization could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy. It could make state power more effective and strong, a modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. In 1815, representatives of इतना कैसे पढ़ लोगे, इतना कैसे पढ़ लोगे? One question finished. Now let me, अभी मार्क नहीं करेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो. Let me explain this question to you. अब इसमें कहा कि न्यू कंजर्वेटिव रिजीम क्या थे 1815 के बाद. ये डेमोक्रेसी में टोटली बिलीव नहीं करते थे. वंश बेटा कैमरा ऑन, नहीं तो मैं रिमूव कर रही हूँ. लास्ट वार्निंग. वंश लास्ट वार्निंग बेटा. हाँ अभी कैमरा ऑफ हुआ तो आई रिमूव यू. आई एम सॉरी बेटा. दिस इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्कूल. ओके. Now, following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by spirit of conservative. Napoleon चला गया, हार गया, अब conservative फिर से आ गया. They want rule of king or queen. उनको वापिस वही सब राजा वाला और monarchy system चाहिए. Conservative believed in the traditional institution and state and society. वो राजा में और state में विश्वास रखते थे. उनको नहीं था कि कोई individual की right होती है, कोई awareness होती है ना? तो they never believe. They believe in monarchy, church, social hierarchy, property, family should be preserved. Individual की कोई value नहीं. Most conservative, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. वो revolutionary days नहीं चाहते थे. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen the traditional institution like monarchy. वो वही वाली traditions चाहते थे जिनमें monarchy आ जाए. A modern army and efficient bureaucracy. Bureaucracy समझते हो ना? Big officers, high rank officers. A dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of Europe. Now mark करो first इसके ऊपर ही लिखो question book के ऊपर ही 3 points only. Where it is written ना a new conservatism after 1815. हाँ जी बेटा question लिखो. Not on copy, on book beta. Yes. What was a new conservatism after 1815? Yes, Purusharth, you want to say something? Can you explain the meaning of bureaucracy? Bureaucracy means officers, high rank officers, big authority, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं काम करने वाले. After the government, second number पे ये आते हैं. अच्छा, which kind of people you include in today's bureaucracy? Raise your hands those who know. आजकल की ब्यूरोक्रेसी में किसको ऐड करोगे? यस राहुल डडवाल, अनम्यूट कर रही हूँ बेटा. मैम IPS, IAS, IFS. Yes, these are the bureaucracy. IAS, IPS and IFS officers. उस टाइम भी ब्यूरोक्रेट्स थे, हाई रैंक ऑफिसर्स, मींस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बाद वाले. दे आर द रियल हीरो ऑफ द कंट्री, यू नो. दे आर द रियल हीरो. ये लॉ बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. दे आर बिग ऑफिसर्स. At the time of crisis over the country, they definitely help. Yes, the question is, what is a new conservative regime 1815? What were their beliefs? What were their beliefs? हाँ कशिश बेटा. Ma'am, can you repeat the question again? हाँ जी. What is a new conservative regime 1815? What were their beliefs? उनके विश्वास क्या थे? हाँ जी. Ready for answer? Following the defeat of Napoleon in 1815, up to preserved
दिस इज फर्स्ट पॉइंट। उर्विश कैमरा ठीक करो बेटा। एंड हेडिंग विल बी स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यस अभिषेक। मैम मेरे को मिल नहीं रहा है, कहाँ पे है? पेज नंबर 10, ये देखो मेरी बुक देखो, पेज नंबर 10। मैम 2 मिनट, मैंने आपको दिख नहीं रही बुक। पेज नंबर 10, ओके थैंक यू मैम, मिल गया। Okay. हाँ जी, exactly. Next line will be the second point. Most conservatives up to monarchy. Modernization. Heading will be modernization. Yes, third, exactly next line. It could make. Last, Europe. This will be third point. And heading will be efficient bureaucracy. Yes, Asta? Ma'am, can you explain the third point once more time? Definitely बेटा। It could make state power more effective and strong. उसको लगता था state power कौन? State power मतलब government। तो government कौन? King और queen। वो ज्यादा strong हो जाएंगे। Modern army, efficient bureaucracy, dynamic economy, abolition of feudalism, serfdom could strengthen the autocratic monarchy। और ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी तो autocratic rule और बढ़िया हो जाएगा। उनको monarchy ही चाहिए थी, ठीक है? हाँ उर्विश? Ma'am, I want Yes बेटा? for some work. हाँ शबनम? Ma'am, can you repeat the first point? फर्स्ट पॉइंट समझाऊं कि आपको मार्क करना है? Ma'am, mark करना है। हाँ जी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फॉलोइंग अप टू प्रिजर्व 4 लाइन्स। Okay, ma'am. हाँ सार्थक बेटा? Ma'am, can you explain second point? Yes. Most conservative did not propose a return to society of pre-revolutionary days. वो revolutionary days में नहीं आना चाहते थे, उनको कोई revolution नहीं चाहिए थी। मॉडर्नाइजेशन को उनको लगता था कि जब मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी, मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न होना नहीं, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी तो रेवोल्यूशन आ जाएगी बस। तो उनको लगता था कि हम ट्रेडिशन वाली कस्टम्स पे ही ध्यान दें। हाँ उर्विश? यस उर्विश? Ma'am, actually by mistaken, ma'am, actually by mistaken, my hand was raised. Okay. हाँ जी. Now you will directly do this question from book. You will not write this question on copy. Show me thumbs up if this question is clear to you. चलो, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you बेटा. Thank you Anuj. Now next question. अच्छा, अब मेरी बात सुनो पहले. All of you leave books and copies and sit like this. ऐसे करके बैठ जाओ. Crossing. मैं कैमरा नीचे करूँ थोड़ा सा. ऐसे करके. Crossing your arms like this. सीधे होके बैठ जाओ. ताकि अब जो मैं बोलूँ वो आपको समझ आए. ठीक है? ओके. हाँ जी. अब बार बार हम लोग यही बात कही जा रहे हैं कि नेपोलियन चला गया, नेपोलियन चला गया, नेपोलियन चला गया। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन डिफीटेड, ये सब कुछ है ना। अच्छा, नेपोलियन तो हार गया। अब जिनके पास कमांड आई देश की, वो देश को कैसे चलाएंगे? तो दिस क्वेश्चन दैट आफ्टर नेपोलियन व्हाट द गवर्नमेंट विल डू। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। I will unmute you in between और मैं पूछूंगी what I said, मैंने क्या बोला।
तो अवेयर होके बैठना मेरी क्लास में, जितने जन भी हो आप 21 के 21 में किसी से भी पूछ सकती हूँ अनम्यूट करके। अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि मैंने क्या बोला, then you are putting yourself into difficulty. You will be removed very easily. It will take 1 second to me to remove you. ध्यान से सुनना। प्लेटफॉर्म मैंने बताया है कि नेपोलियन चला गया, नेपोलियन हार गया, नेपोलियन के बाद वाली जो सरकार आई अब वो क्या करने वाली है। अब आपको पता है मोदी जी से पहले जो गवर्नमेंट थी वो अपने हिसाब से देश चलाती थी। आज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाते हैं। 2014 में बने वो, आज 2021 है, तो 6 साल से वो अपनी तरफ से सरकार चला रहे हैं। उनके बाद जो प्रधानमंत्री आएगा उसके हिसाब से फिर देश चलेगा, गवर्नमेंट उसके हिसाब से बनेगी। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग सम ऑफ द डिफरेंसेस, कुछ नए काम करने वाली है ये सरकार। नाउ दीज काइंड्स ऑफ पीपल ना, जो 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 मेन पीपल थे, अब आप ये सोचो कि द मेन पर्सन ऑफ द कंट्री इज प्राइम मिनिस्टर। In case the death of prime minister, who will be the leader? The rest of the council of minister, जो 4, 6, 10, 15 बंदे बच जाते हैं, they will be the leader. फिर वो लीडर आपस में सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसी सरकार बनाएं, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएं, कौन हेड बने और क्या करें। इकट्ठे बैठ के मिलते हैं और फिर बात करते हैं। मैं सही कह रही हूँ? Am I clear? Show me thumbs up if I'm clear. मैं जो बोल रही हूँ क्लियर है तो? Okay, अनुज, thank you. राहुल, शबनम, वंश, आहन, सचलीन, वैभव, उर्वीश, आस्था, सार्थक, चंद्रप्रीत, सानिया, शान नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? अनम्यूट कर। ऐसा मैंने क्या कह दिया? अनम्यूट करो। शान, तुझे नहीं क्लियर हुआ? नो कोई बात नहीं, आप सही बंदे हो, सच्चे बंदे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको क्लियर नहीं हुआ और आपने मुझे बता दिया। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अच्छा क्रिश, अनम्यूट कर। मैंने जो बोला ना अभी, मैंने वैसे कुछ भी बुक से नहीं पढ़ाया था शान, मैंने इनको बोला बुक छोड़ दो अपनी, एंड यू विल सिट लाइक दिस क्रॉसिंग आर्म्स, बस मुझे सुनो आप। हाँ जी, बताना क्या था वंश, मैंने क्या बोला अभी? वंश अनम्यूट करो। वैभव, सॉरी, देखो ऐसे टाइम खराब होता है, फिर ये गलत बात है ना। शबनम, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। वैभव, वीडियो ऑन? हाँ जी मैम। हाँ जी। नाउ टेल मी whatever the things I told you right now. Ma'am, you told that when Napoleon left the country, there were 10 to 15 people. They were thinking who would be the prime minister or the head of the country, and how they will run the country. चलो, अब थैंक यू वेरी मच वैभव। अब जिनको ये बात समझ आ गई ना, वो उनको अगला टॉपिक बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। सारी 10th को डिफिकल्ट लगेगा ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में, बट आपको F को नहीं लगेगा क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म क्लियर है। सिर्फ आपने दिमाग में एक बात ध्यान में रखनी है, नेपोलियन चला गया, हु विल बी द किंग, हु विल बी द गवर्नमेंट, हु विल बी द रूलर। सारे के सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं और बात करते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ शैल वी स्टार्ट रीडिंग? लिखेंगे नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कुछ लिखा जाएगा ना सही, बट द थिंग्स, बट द क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू यू। ठीक है? अच्छा, राहुल डडवाल, बेटा स्टार्ट रीडिंग। In 1855, representatives of the European powers. 1815. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian. Rahul, wait, beta. You will stop after every full stop. ठीक है? आज लाइन अगर क्लियर हो गई, आज क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो सारा साल कंफर्टेबल रहोगे। आप कभी भी नहीं कहोगे मैम वियना कांग्रेस डिफिकल्ट है। अगर आज समझ नहीं आई तो सारा साल ये क्वेश्चन तंग करेगा। नाउ ध्यान से सुनना, कुछ भी लिखना नहीं, कुछ मार्क नहीं करना, बस ध्यान से सुनना। अच्छा, अभी ना इसे राहुल ने पढ़ा, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स, कौन सी? योर 1 मार्क आंसर अंडरलाइन। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। अब ये चारों के चारों देश इकट्ठे होके कहाँ बैठे हैं? वियना में। वियना इज द नेम ऑफ अ प्लेस।
अब ये चारों देश नेपोलियन को भगा के इकट्ठे होके बैठे हैं कि बोलो भाई अब क्या करें देश का। फ्रांस में तो बड़े चेंजेस हो गए हैं, कंजर्वेटिव भी आ गए थे, तो बोलते हैं अब देखें हम क्या करें 1815 में। ठीक है, सारे के सारे डेलीगेट्स इकट्ठे होके बैठ गए हैं और कहाँ बैठे हैं ये? व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्लेस? वियना। 1815 में जब नेपोलियन चला गया तो ये चारों कंट्रीज पावरफुल कंट्रीज थे बेटा। अब पावरफुल थे तभी तो नेपोलियन को हरा दिया, वरना नेपोलियन कहाँ हारने वाला था। अब नेपोलियन हार गया तो ये चारों के चारों कंट्रीज कौन कौन से? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया इकट्ठे बैठ के अब खिचड़ी पका रहे हैं कि आगे क्या करें। राइट? हाँ जी राहुल, नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनना, कुछ भी लिखना नहीं है। हाँ जी राहुल। The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. हाँ जी, चांसलर कौन है? हेड कौन है? ड्यूक मेटरनिच, और वो ऑस्ट्रिया का था। बड़ा सही बंदा था। अब जो हेड बनता है ऑब्वियसली उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं तो वो हेड बनता है। क्लास में मॉनिटर बनता है तो उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं तो वो मॉनिटर बनता है। तो हेड बन गया ड्यूक मेटरनिच, योर वन मार्क आंसर, एंड ही वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बड़ा पावरफुल कंट्री था और इसका हेड था ड्यूक मेटरनिच। ये सबको लेके बैठ गया वियना में। अब देखो ये क्या करने वाले हैं। हाँ जी राहुल। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. चलो जी, ट्रेटी हुई एक ट्रेटी। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ट्रेटी। ट्रेटी मीन्स एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ वियना में बैठकर कि सारे देश इसको माने। और पहला काम क्या था? वंश थोड़ा सा कैमरा ठीक कर बेटा, थोड़ा पीछे होकर बैठ। फर्स्ट काम इन्होंने सोचा अनडू द चेंजेस डन बाय नेपोलियन। अनडू क्या होता है? अनुज अनम्यूट योरसेल्फ। अनडू क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अनडू क्या होता है अनुज? अनडू मंडू हाँ मैम means deleting something and redo means I'm bringing that back. yes whenever we do something in the computer, then at the left side of the corner there are two buttons ना। one button is ऐसे करके होता है arrow पीछे वाला कि undo the command है ना। तो means whatever the changes you have done, you don't want to change that, undo. Show me thumbs up if this is clear to you. undo verb, क्योंकि this will be the first point. ठीक है, थैंक यू बेटा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। चलो सारे जने इकट्ठे बैठ के डेलीगेट्स, तो पहला फैसला ये हुआ दे विल अनडू द चेंजेस दैट ब्रॉट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियन। जो जो नेपोलियन के टाइम से चेंजेस हुए थे सारे के सारे अनडू करेंगे। अब वो कोई चेंज नहीं माना जाएगा। अब उनके हिसाब से देश चलने वाला, उन चारों के हिसाब से। किन चारों के हिसाब से? ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन। अब जो जो नेपोलियन के टाइम पे चेंजेस हुए वो अनडू। हाँ जी राहुल। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. चलो नेपोलियन के टाइम पे जो जो फ्रांस को मिला था वो सारा कुछ फ्रांस से वापस। फ्रांस को तो कमजोर करना था इन्होंने। अब थोड़ा सा ना अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करो। फ्रांस बड़ा पावरफुल था। फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, फ्रांस में कुछ हुआ, फ्रांस में चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशन बने और बाकी साथ साथ में भी आ गए। फ्रांस ने फ्लैग बनाया, एलिगरी बनाई और बाकी यूरोप में भी आई। आपको याद है वो क्वेश्चन मैंने कराया था, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यस, हाँ पुरुषार्थ, वांट टू से समथिंग? No, I wanted to tell only that you told in the starting of this, when we started this chapter, you told that when France sneezes. The rest of Europe catches cold. फ्रांस को अगर छींक भी आती है ना, पूरा यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो इसका मतलब उन्होंने फ्रांस को सबसे पहले कमजोर करना था ताकि दोबारा कभी हिम्मत ही ना कर पाए फ्रांस। उन्होंने फ्रांस से काफी ज्यादा टेरिटरीज वापस ली और फ्रांस को वीक कर दिया। वन मोर थिंग, बर्बन डायनेस्टी जिससे पावर ले ली थी नेपोलियन ने, अब दोबारा उसको पावर ली। हाँ जी राहुल।
A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. ये सारी की सारी फ्रांस के आसपास एक बाउंड्री वॉल बना दी, ना फ्रांस की आर्मी यहाँ आएगी, ना लिबर्टी का हम सोचेंगे, ना कहीं रेवोल्यूशन आएगी, और सारा का सारा यूरोप ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, उर्वीश कैमरा ठीक करो बेटा, शबनम, क्रिश कैमरा प्लीज, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू। शबनम, क्रिश, लास्ट वार्निंग। यस राहुल। Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in the south. हाँ जी, अब ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इसमें समझाने वाला कम है, किस किस को कौन सा एरिया मिला। अब राहुल ने पढ़ा है कि सीरीज ऑफ बाउंड्रीज पर, वो मैंने बता दिया। किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन नॉर्थ, जेनोवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट इन द साउथ। ये चीजें इनको मिल गई और ये देश और स्ट्रॉन्ग हो गए। हाँ जी राहुल। Prussia was given important new territories on its western frontier, while Austria was given control of the northern Italy. चलो जी, प्रशिया तो पहले ही इतना पावरफुल बंदा था, फिर भी प्रशिया को न्यू टेरिटरी मिल गई वेस्टर्न फ्रंटियर्स की, एंड ऑस्ट्रिया गॉट द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो नॉर्दर्न इटली मिलने से ऑस्ट्रिया और स्ट्रॉन्ग हो गया और प्रशिया और स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ जी, नाउ कंटिन्यू आस्था धवन, राहुल के बाद आप पढ़ दो। But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given. ये कुछ खास था, जो 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स थी ना, इनको टच नहीं करा गया। अदरवाइज दे हैव डन लॉट ऑफ चेंजेस, चारों ने मिलकर खूब चेंजेस किए, बट पता नहीं 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स का कुछ ऐसा रूल ओवर था, इनको अनटच रखा गया, इनको नहीं छुआ गया, बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस एरिया ऑफ द नेपोलियन वाज वेरी गुड, सो दिस वाज अनटच। अच्छा, ये लाइन को दिमाग में रखना, नेक्स्ट पेज पे ये लाइन फिर पढ़ाऊंगी और आपसे पूछूंगी मैं। Confederation of 39 states was untouched. हाँ जी आस्था। In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. चलो जी, The main intention was. रशिया को पोलैंड मिल गया और प्रशिया को सैक्सनी मिल गया, दोनों देश और स्ट्रॉन्ग हो गए। यस आस्था। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. हाँ जी, मेन इंटेंशन यही थी कि मोनार्की वापस आ जाए, कंजर्वेटिज्म वापस आ जाए और फ्रीडम और लिबर्टी जैसे आइडियाज कभी ना सुनने को मिले, लोगों को पता भी ना हो फ्रीडम क्या है। ये थे कंजर्वेटिव। यस पुरुषार्थ। Can you explain that German Confederation in one line? 39 स्टेट्स को उसने, छोटी छोटी स्टेट्स थी, कन्फेडरेशन बनाया था, उसका रूल ओवर करा था, एडमिनिस्ट्रेशन करा था, वो बहुत बढ़िया था नेपोलियन का। तो जब उसके बाद चेंजेस हुए तो इन्होंने इनको नहीं छेड़ा, 39 स्टेट्स को नहीं छेड़ा। हाँ जी कशिश। मैम ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, आप इसकी समरी बता दो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ जी सार्थक, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बाकी सारी कंट्रीज को तो मिला मैम, ब्रिटेन को कोई कंट्री या फिर कोई सिटी नहीं मिली। अरे वेरी गुड। क्लास में होते तो मैं सार्थक के लिए क्लैपिंग करवाती। वाकई यार, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि ब्रिटेन को कुछ नहीं मिला, और ब्रिटेन इतना भोला कैसे हो सकता है भाई? ब्रिटेन इतना भोला कैसे हो सकता है? ब्रिटेन वही इंग्लैंड जिसने हम पे रूल ओवर किया 350 साल। तो यहाँ छोटे छोटे कंट्रीज को सब कुछ मिल रहा है, ब्रिटेन को कुछ नहीं मिला। वेरी गुड क्वेश्चन। अरे ब्रिटेन को अब वो मिलने वाला है कि ब्रिटेन पूरे यूरोप पे कब्जा करने वाला है। बस उसकी पॉलिसी ये रहती थी, डिवाइड एंड रूल, चुपचाप बैठ के देखते रहो और फिर इन पर रूल ओवर करो। ब्रिटेन की कहानी पढ़ेंगे अगले केस में, ठीक है? बट दिस इज वेरी गुड कि मैं समझा रही हूँ और आपको समझ भी आ रहा है कि प्रशिया को ये मिल गया, ऑस्ट्रिया को ये मिल गया, बेल्जियम इधर चला गया, रशिया इधर चला गया, सैक्सनी उसको मिल गया, नॉर्दर्न इटली इधर चला गया। तो ब्रिटेन बेचारा कुछ नहीं लेगा, इतना स्मार्ट कंट्री है जो। तो ब्रिटेन हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटेन अपने हाथ में छोटे मोटे देश नहीं, बहुत बड़े देश लेने वाला है, ठीक है?
चलो अब कशिश की बात सुने। कशिश कहती है कि मैम सबको सम अप कर दो। हाँ जी लिसन देन, कैमराज ऑन, मुझे आपकी शक्लें दिखी, आपको मेरी दिख रही ना शक्ल, है ना? अगर मैं अपना फेस ना दिखाऊं और कैमरा ऐसे हो जाए तो ठीक लगेगा? और मैं पढ़ाती जाऊं बोलती जाऊं, कितना इरिटेशन होगी, है ना शबनम? तो कैमरा ऑन करो, मुझे भी इरिटेशन होती जब आप नहीं दिखते। ठीक है, ये तो थैंक गॉड कि इस कंप्यूटर एरिया का, कंप्यूटर लाइफ का, ये कंप्यूटर टाइम का, एक दूसरे को कम से कम देख तो रहे हैं, एक दूसरे को सुन तो रहे हैं, कॉपीज तो बना रहे हैं ना। हाँ जी, अब सारी बात समअप करते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ, मैंने बुक छोड़ दी है, मैंने अपनी तरफ से 5 पॉइंट बताऊंगी, यही 5 पॉइंट लर्न करनी। Now, after the defeat of Napoleon, 4 of the countries they met in Vienna in 1815 and set the Treaty of Vienna, एक agreement करा and made 5 rules for them. उनके लिए 5 रूल बनाए। फर्स्ट रूल उन्होंने बनाया था undo the changes done by Napoleon, जो नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे undo हो जाएंगे। सेकेंड उन्होंने कहा था बर्बन डायनेस्टी को खत्म किया था नेपोलियन ने, रीस्टोर द पावर, बर्बन डायनेस्टी फिर से आ गई। थर्ड उन्होंने बोला था कि 39 कन्फेडरेशन को कुछ नहीं किया, अनटच रखा गया। फोर्थ आप ये पढ़ लेना यहाँ से, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा हिस्सा डाला गया, प्रशिया को क्या मिला, सैक्सनी किधर चला गया, नीदरलैंड को क्या मिला। और फिफ्थ में आप लिखोगे कि द मेन इंटेंशन वाज टू रीस्टोर मोनार्की, उनका सारा कुछ करने का मतलब ये था मोनार्की फिर से आ जाए, कंजर्वेटिव फिर से आ जाए, रूल ऑफ किंग और क्वीन फिर से आ जाए। नाउ दीज वर द 5 points. Now show me thumbs up if it is clear to you. ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ जी राहुल बेटा। हम सेकंड पॉइंट तो फिर 2 पॉइंट्स तो सेम हो गए हैं ना? हाँ सेम हो गए हैं, यस सेम हो गए हैं। आप जब लिखोगे लर्न करोगे तो एडजस्ट कर लेना, वो सेम बात होगी। हम फिर टोटल 4 पॉइंट्स लिखेंगे हम? 5 पॉइंट्स, वो रुक जाओ मैं करवाती हूँ वाइंड अप, वो रुक जाओ, वेट, बस क्वेश्चन पहले देखो क्लियर हो गया। हाँ उर्वेश, हाँ उर्वेश। मैम मेरा डाउट है कि नेपोलियन देशों के साथ लड़ाई की, वही देश ये बना रहे थे। नेपोलियन तो हार चुका था। अरे जब शेयर्स होता है तभी तो बाकी जानते हैं ना। तो द लॉयन वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम, स्लीपिंग मतलब वो बेचारा हार चुका था, तो तभी तो ये वाले देश जागे। नेपोलियन के होते हुए थोड़ी कुछ ऐसा कर सकता था कोई, राइट? चलो, now wind up these 5 points. Take a pen in your hand, hurry up, and please write here question. Open your book on this page. यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, लिखा कुछ नहीं है, प्लेन जगह है आपके पास। Now, I have written this question. You please also write on book, not on copy. Yes. What was Vienna Congress? What was Vienna Congress? Explain its 5 objectives. What was Vienna Congress? Explain its 5 objectives. Now we will wind up the question. Shall we start? चलो, ओके, थैंक यू शान, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बेटा, पीछे वाले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 10 पे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन 1815 अप टू मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, दिस विल बी इंट्रोडक्शन। This will be introduction. Next point, the delegates drew up the Treaty of Vienna up to beta wars, Napoleonic wars. This will be first point. हाँ अनुज बेटा, you raised hand. Ma'am, I'm not able to get where it is. बेटा from the very beginning see this page. यहीं से शुरू करना हमने, आप देख रहे हो यहाँ से, फ्रॉम हेयर अप टू
Metternich तक ब्रैकेट कर लो and this will be your introduction. Now exactly next line up to अगले पेज पे आ जाओ, up to here Napoleonic Wars. This will be your first point. ब्रैकेट में कर लो. This will be your first point and heading will be undo the changes. Undo the changes. Second point, exactly next line, the Bourbon dynasty up to future. This will be second point. And heading will be the Bourbon dynasty. Next, thus the kingdom up to south. This will be next point. And heading will be the kingdom of Netherlands. The kingdom of Netherlands. Next, Prussia, Italy, one line only. And heading will be new territories. New territories. Next, Acha, I am going to speak fourth point. You have done 4. Abhishek, unmute kar. You Yes, have ma'am. done 4 point कि 3? Yes, ma'am. 4. 4. चलो ठीक है बेटा. Now last one, 5th one पे आओ. But the German Confederation of 39 states that had been set by Napoleon was untouched up to Saxony. This will be 5th point, last point. And heading will be German Confederation of 39 states. German Confederation of 39 states. हाँ जी, last conclusion. The rest is conclusion beta. The main intention up to Europe. This will be conclusion. हाँ वैभव. Yes beta. Ma'am, what is the heading of 3rd and 4th point? Okay. हाँ जी, third. Purushart, can you tell me the heading of the 3rd point? The heading of 3rd point is the Kingdom of Netherlands. Okay. 4th point. Heading of new territories. ठीक है बेटा. New territories. Yes. Can you Thank you, please ma'am. tell we have to do this question in No, notebook? no. Directly we will learn from copy. Textbook. We will not write this question. बड़ा ही अच्छा question बना है. Book पे बना है. Introduction, 5 points, 5 headings, then conclusion. So you will not write in copy. हाँ कशिश. मैम जैसे हमने ये 5 पॉइंट्स बना दिए तो ये कंक्लूजन 6 पॉइंट होगा. नहीं. Conclusion कोई point नहीं होता. Introduction कोई point नहीं होता. 5 points ही 5 points होते हैं. ओके मैम. चलो. Now show me thumbs up if this question is clear to you. कोई doubt है तो unmute कर देती हूँ मैं. जिसको doubt है hand raise करो. Waiting for Sania's response. सृजन response नहीं मिला मुझे. ठीक है. Thank you बेटा. Thank you very much. चलो. Now I am going to wind up the class. और आपका homework है 1 question only and only learn. Okay? चलो. Thank you very much बेटा. Thank you.